Good morning, students. Today we are with the fourth lecture on protein. I will discuss little bit properties of the amino acid now. Physical properties of amino acid. Amino acid are colorless crystalline substance. When you purify the amino acid in pure form, so it looks like a crystalline substance. What you see in the figure. All amino acid are a crystalline powder, crystalline colorless substance. The crystals from vary. The shape of crystals may be vary. For an example, tyrosine produce slender needles and cysteine produce hexagonal plates. Then taste. There may be tasteless tyrosine. Glycine and alanine are sweet. Arginine is bitter. So all amino acids do not have the same taste. It is interesting to note that the phenylalanine is bitter taste and its enantiomer R is a sweet one. So in one form, one amino acid having the one taste, and in another form the same amino acid have a different taste. There may have high melting temperature, that is about 200 degree for all these amino acid. Amino acids are soluble in polar solvent, water and ethanol, but they are insoluble in non-polar solvent such as benzene and ether. Some amino acids like tryptophan, tyrosine, histidine, phenylalanine, they absorb UV light 260 to 290 nanometer. This is the important event when a cell exposed to UV light. We generally heard that UV light damages the DNA. That is true. But which amino acid absorb the UV light and damaged? So this aromatic amino acid, phenyl ring, is absorb the UV light. So tyrosine and tryptophan and phenylalanine, they absorb the UV light and they also disturb where they present in enzyme or protein. One more interesting property of amino acid is Zwitter ion. I told in my last lecture what is Zwitter ion. So we know that amino group NH2 and carboxylic group COOH. Under ionic condition, this hydrogen is moved to basic group. And that's why instead of NH2, in ionic state, the ammonia is converted to amion, that is NH3, and carboxyl ion COO minus. Thus, the whole amino acid possess or carry both electric charge on the same molecule, plus and minus. That's why all amino acid are एम्फोलाइट. दे आर एम्फोलाइट्स, उभय गुणधर्मी, जिसके पास दोनों ही चार्जेस है. एम्फोलाइट्स जैसे हमने सुना है एम्फीबियंस, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, फ्रॉग, तो उसको उस पे से वर्ड है एम्फो. तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ एम्फोलाइट्स. सो यहाँ पे दोनों ही चार्जेस है. ज्विटर आयन, दो आयन्स है, प्लस आयन्स और माइनस आयन.
All molecules possessing both acidic and basic group exist an uncharged molecule and ions as a mixture of both. Calculation has revealed that in aqueous solution of the most amino acid except glycine can have only one part of uncharged molecule in 1 lakh part of the ionic form. मतलब हम 1 लाख मॉलिक्यूल को पानी में भिगोएंगे एमिनो एसिड में, तो उसमें से सिर्फ एक को छोड़ के बाकी के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनिक फॉर्म में होंगे. 1 पार्ट ऑफ 1 लाख अनआयोनाइज रहेगा, बाकी के सारे आयन फॉर्म में हो जाएंगे. इट इज मोस्ट एक्यूरेट टू राइट द सब्सटेंस एज ग्लाइसिन. तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन. इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ज्यूटराइन होने से क्या हो जाता है? सो इन एमिनो एसिड सॉल्यूशन और इन अ प्रोटीन सॉल्यूशन, वेन एवर यू एड एनी एसिड, whenever you add any acid or base, then this acid and base react with plus charge and minus charge of the amino acid, and thus it prevents the acid change, pH change. And we know this phenomenon, buffering capacity. तो बफर का मतलब क्या है? जिसकी प्रेजेंस में एसिड या बेस डालने पर पीएच का चेंज नहीं होता. सो द सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड और प्रोटीन, इट इज अ वेरी गुड बफरिंग, इट हैज़ अ वेरी गुड बफरिंग कैपेसिटी. सो हाउ दिस बफरिंग कैपेसिटी इज कंट्रीब्यूटेड? दिस बफरिंग कैपेसिटी, सपोज आपने एसिड डाला, कोई भी एसिड, तो एसिड मतलब H आयन ज़्यादा होगा. सो दिस H आयन इज टेकन अप बाय COO माइनस, और उसकी इम्पैक्ट वही की वही रहेगी. तो एसिड का ज़्यादा हिस्सा जितना उसका टॉलरेट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जितना एक्सेप्ट कर सकेगा COO माइनस, तब तक pH चेंज नहीं होगी. बराबर. तो एक रेंज में एसिड डालने पर pH चेंज नहीं होगी. दैट रेंज इज नोन एज द बफरिंग रेंज. अब बफरिंग रेंज जो होती है सॉल्यूशन को, उसमें हम pKa वैल्यू एसिड के लिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बेस के लिए pKb वैल्यू ऐसे हम डेजिग्नेट कर सकते हैं. उसी तरह आप सॉल्यूशन में OH डालें, बेस, तो OH एमिनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन लेकर क्या बन जाएगा? वाटर, न्यूट्रल प्रोडक्ट. तो बेस डालने पर भी प्रोडक्ट में पीएच चेंज नहीं देखा जाएगा. और दिस फिनोमेना अकर अप टू सर्टेन एक्सटेंट. ये कितना भी एसिड डालो, कितना भी बेस डालो, इस पे इफेक्ट करेगा. तो सर्टेन लिमिट तक ये पीएच चेंज नहीं होगा. तो वो एसिड डालने से और बेस डालने से जब तक पीएच चेंज नहीं होती, वो एरिया जो है उसको हम बोलेंगे बफरिंग रेंज, बफरिंग कैपेसिटी. तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी एमिनो एसिड सॉल्यूशन का या प्रोटीन सॉल्यूशन की बफरिंग कैपेसिटी? सो सिंपल टाइट्रेशन से. पहले पढ़ ले स्लाइड में क्या लिखा है. इन द आयोनिक फॉर्म प्रोटॉन माइग्रेट फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू एमिनो ग्रुप. प्रोटॉन मतलब H, हाइड्रोजन. प्रोटॉन माइग्रेट फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू एमिनो ग्रुप and producing carboxylated and ammonium ion. तो पानी में 2 आयन होंगे, NH+3 COO-.
Amino acid react with both acid and bases as shown in the figure, and that's why we tell them as a amphoteric in the nature, zwitter ion in the nature. आपको क्या करना है, बफरिंग रेंज आइडेंटिफाई करनी है। तो कोई भी टाइट्रेशन स्टार्ट कर लो एक 0 pH से एक सॉल्यूशन में, तो एक रेंज आएगी जहाँ पर आप कितना भी ऐड कर दो एसिड। यहाँ से देखो आपने 0.5 ml एसिड डाल दिया, फिर ये एक रेंज है जिसके बीच में करीबन 0.5 ml ऐड किया आपने, तो भी उसके पीएच में कोई मेजर फर्क नहीं रहा। ये वाला द पीएच इज 5.97। 5.97 पीएच से पहले और पीएच के बाद बहुत सी स्टेबिलिटी होती है। तो उस रेंज में जो मैंने अभी बताया OH और H+ का एक्सचेंज वो ज़्यादा होगा। सो फॉर दिस pH दिस सॉल्यूशन बिकम अ बफर। तो ये सॉल्यूशन 6 pH के ऊपर वेरी गुड बफरिंग कैपेसिटी होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। PI बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे PI। जैसे pH होती है वैसे PI है, उसको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक pH। आइसो इलेक्ट्रिक pH। आइसो इलेक्ट्रिक pH इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस रेंज। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रेंज है उसका ये मिड पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रिक। मिड पॉइंट कैसे हुआ, देखो यहाँ पे COOH न्यूट्रल हो गया, माइनस चार्ज नहीं है, और यहाँ पे NH2 न्यूट्रल हो गया, मतलब उस पर माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज, और इधर तो यहाँ एमिनो एसिड एक pH पे कैटायन बना प्लस चार्ज है, दूसरी pH पे एनायन बना हुआ है माइनस चार्ज है, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही चार्ज है, और दोनों ही चार्ज अपने आप को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज। तो एट दिस pH, वो जो भी pH है, जब किसी भी एमिनो एसिड्स के प्लस और माइनस चार्ज इक्वल हो जाए, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे, बैलेंस्ड रहे, उस pH को that pH 5.97 for that amino acid is known as isoelectric pH और isoelectric point। फिर से एक बार, isoelectric pH और isoelectric point क्या है? isoelectric pH और isoelectric point मतलब the pH at which the net charge of molecule become 0. The net charge of molecule become 0. तो ये प्लस और माइनस इज इक्वल टू 0। जिस pH पे हो रहा है वो pH 7 नहीं होगी, 7 pH वाटर में। तो वाटर का आइसो इलेक्ट्रिक pH बोले तो भी 7 है और न्यूट्रल बोले तो 7 है। पर एमिनो एसिड में जब हम देखें तो किसी के पास नेगेटिव चार्ज है 7 pH पे, किसी के पास पॉजिटिवली चार्ज है 7 pH पे। तो उसमें एसिड डालो या बेस डालो तब जाके एक चेंज हो जाएगा उसका pH, और वो किसी pH पे अपना टोटल चार्ज 0 करेगा। तो जिस pH पे कोई भी एमिनो एसिड है वो किसी ना किसी pH पे न्यूट्रल तो बनेगा। तो वो जो pH पे न्यूट्रल बनता है उसी pH को हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक pH और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट।
बराबर। तो ये टाइट्रेशन कर्व है अमीनो एसिड का, जिसकी थियरी और प्रैक्टिकल आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। तो ये केमिस्ट्री में फिर से आएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कौन सा टर्म्स देखा? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, जिसको बोलेंगे पीआई, और ये दो वैल्यूज है pKa1 और pKa2। यहाँ पे pH चेंज लिस्ट हो जाएगा। तो ये बफरिंग रेंज है, दो बफरिंग रेंज है एमिनो एसिड्स की। इस बफर पे, इस रेंज में उसका ज़्यादा pH चेंज नहीं होगा और वहाँ पे ज़्यादा pH चेंज नहीं होगा। तो फिर से एक बार, आइसोइलेक्ट्रिक pH, द pH एट विच द आइसोइलेक्ट्रिक द नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल बिकम 0. So isoelectric point is the pH at which molecule carries no net electrical charge. उस पर कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं, उसका मतलब वो न्यूट्रल है, उसका मतलब उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है, दोनों के वैल्यूज बराबर है। नेट चार्ज 0 बन गया है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द स्टैटिस्टिकल मीन्स, तो जितना प्लस चार्ज है उतना उसके पास माइनस चार्ज है। द स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर टू रिप्रेजेंट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज PHI। तो PH ब्रैकेट में I लिखते हैं। हर एक एमिनो एसिड के पास दो बफरिंग रेंज है, जिसको pKa1, pKa2, और जिनके पास एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो लास्ट में देख सकते हैं आप, जिसके पास 2 एसिडिक ग्रुप है या 2-3 एमाइन ग्रुप्स है, उनके पास pK वैल्यू 1, 2 और 3 है। तो ये PI वैल्यू हर एक एमिनो एसिड की PI वैल्यू अलग अलग है। एवरी अमीनो एसिड हैव इट्स ऑन PI वैल्यू। नो वन एमिनो एसिड हियर यू कैन सी इट इज न्यूट्रल एट 7 pH। 7 pH पे वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है 7 pH पे, पर जिस pH पे एमिनो एसिड न्यूट्रल्स होते हैं वो pH को हम बोलेंगे PI। ग्लाइसिन का 5.97 है, इज इट? तो हर एक का है। अल्कलाइन एमिनो एसिड देख लीजिए, लास्ट में अर्जिनिन और हिस्टिडीन, इनकी PI 10.76 और 7.59 है, अल्कलाइन रेंज है। बाकी सबकी आप देख सकते हो। जो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, उनका 2.77, 3.22 है। दैट वो एक एसिडिक रेंज में न्यूट्रलाइज होते हैं, इज इट? Standard amino acid. Now we clear there are 20 amino acid. Which 20 amino acid which coded by the gene? Okay? आगे आपको फ्यूचर में पता चलेगा जेनेटिक कोड वगैरह क्या है। तो 20 अमीनो एसिड का कोडिंग DNA में होता है, तो उनको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। पर उसके अलावा हमारे पास कितने एमिनो एसिड? देयर आर 300-400 एमिनो एसिड। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एमिनो एसिड is any molecule which carries at least one amino group and carboxylic group. तो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है बाकी के। आफ्टर 20, जो 20 एमिनो एसिड है, उसके अलावा जितने भी एमिनो एसिड है वो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। तो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड में हम कुछ देख ले, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट नो।
वन एमिनो एसिड डिराइव्ड इन प्रोटीन। तो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स बने हैं डीएनए से, एमआरएनए से होके, दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, लीवोफॉर्म, एल एलेनाइन, एल लाइसिन, एल ग्लूटामिक एसिड। आप कहीं पर भी देखेंगे उसके आगे लीवोफॉर्म लिखा होगा। पर डेक्स्ट्रोफॉर्म अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी है, डेक्स्ट्रो, DLA9, ये लास्ट में देखो DLA9 है, यहाँ पे नीचे DLA9। तो जो DLA9 है दैट इज अनकॉमन DNA, सॉरी एमिनो एसिड, वो हमारी बॉडी में नॉर्मली नहीं होता। तो DLA9 कहाँ पे मिलेगा? पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। दूसरा है कोलाजन, जो हमारी मसल्स बनी है, और मसल्स के अंदर जो फाइब्रस प्रोटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन कोलाजन, एंड दैट कोलाजन हैव अ हाइड्रोक्सी प्रोलाइन इंस्टेड ऑफ प्रोलाइन। तो हमारी बॉडी में जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड जिसका नाम हमने पढ़ा है प्रोलाइन, सबसे लास्ट में था, साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड 20th नंबर का, अगर उसमें एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप लग जाए तो हम उसको बोलेंगे फॉर हाइड्रोक्सी प्रोलाइन। तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड में कोई एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कुछ भी एक्स्ट्रा लग जाएगा, देन इट इज कंसिडर एज अ नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। वैसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल है 5 हाइड्रोक्सिलाइसिन। देन आफ्टर एक और एग्जाम्पल हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन वो क्रोमोसोम में होगा। क्रोमोसोम में जो भी डीएनए होते हैं हमारी, दैट रैप्ड ऑन द हिस्टोन। हमारी डीएनए हेलिक्स जो भी बाइंड है वो 8 मॉलिक्यूल्स है उस पर बाइंड है, ये डीएनए। तो डीएनए जिस पर रैप होता है वो प्रोटीन है, न्यूक्लियर प्रोटीन, और हिस्टोन बोलते हैं। तो हिस्टोन में मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, एसिटाइलेटेड होता है एमिनो एसिड में। तो वो एमिनो एसिड में एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप होने पर ये सारे कौन से एग्जाम्पल्स है? नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। तीसरा एक एग्जाम्पल है कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। जो ग्लूटामिक एसिड जो है उसमें 1 और 2 तो कार्बोक्सिल ग्रुप थे ही, यहाँ पे 3rd आ गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये किस में होता है? हमारे ब्लड क्लॉटिंग के पाथवेज में। फोर्थ वन इज सिस्टीन एंड सिस्टाइन। ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको पूछा जाए कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो 2 नहीं 3 बोलने हैं आपको। यू हैव टू टेल द 3 एमिनो एसिड, 3 आर देयर। वन जिसको आप मिथियोनाइन बोल लेते हो, दूसरा है ये सिस्टाइन, और तीसरा ये सिस्टीन। सिस्टीन इज द डाइमर ऑफ सिस्टाइन। एक सिस्टाइन और दूसरा सिस्टाइन बाइंड होंगे और बॉन्ड बनाएंगे, S बॉन्ड S। दिस इज नॉन एज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमारे जो बाल है उसकी थिकनेस और उसकी स्टेबिलिटी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड पर डिपेंड। सो दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड इन द प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन। जितना डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रोटीन में ज़्यादा होगा उतना प्रोटीन स्टेबल होगा। सो दिस सिस्टाइन is a sulfur containing non-standard amino acid. Actually it is the dimer of cysteine and cysteine. So cysteine is a dipeptide. और एग्जाम्पल्स क्या है? तो नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है वो सब बीटा फॉर्म में नहीं होंगे, हमारे अल्फा फॉर्म में होते वो एमिनो एसिड जो साइक्लिक है। यहाँ पे कौन सा है? बीटा LA9, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ये दोनों नाम सुन लो, ऑर्निथाइन एंड सिट्रुलिन। ऑर्निथाइन एंड सिट्रुलिन बोथ एमिनो एसिड फाउंड इन द
यूरिया साइकिल। हम जितना भी प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होकर उसमें से एमोनिया रिलीज हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन डिग्रेडेशन से बनने वाला अमोनिया और कार्बन मेटाबॉलिज्म से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ आर वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारे बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट शुड बी रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी और ब्लड। तो ब्लड में से इसको निकालना है, तो डायरेक्टली एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएंगे, तो दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बनती है एंड दैट प्रोडक्ट इज यूरिया, NH2CO NH2 NH2CO NH2। एक CO2 पे दो एमोनिया लगेंगे NH2CO NH2 और उसको हम बोलेंगे यूरिया। जो यूरिया मेजर कंस्टिट्यूएंट है यूरिन में। तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है उसमें रहने वाला यूरिया प्रोडक्ट लीवर में बनेगा और लीवर में बनने के लिए यूरिया साइकिल चाहिए। सो दिस इज यूरिया साइकिल, जिसको किसने ढूंढा है? हांस क्रेब्स। जिसने TCA साइकिल ढूंढा उसी ने यूरिया साइकिल भी आइडेंटिफाइड किया है। तो ये यूरिया साइकिल में सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ऑर्निथाइन, ये सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, बराबर। तो ऐसे नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हमको याद रखना नहीं है पर समझना चाहिए, बराबर। एंड लास्ट स्लाइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन द प्रोटीन। तो प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड हर प्रोटीन में इक्वली नहीं होते। ऑल एमिनो एसिड्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोटीन। 40% weight of the fibrin and 25% weight of the collagen is accounted by the glycine। सिर्फ कोलाजन का 25% ग्लाइसिन एमिनो एसिड, एक ही एमिनो एसिड उसमें इतना ज़्यादा है। तो उनके फंक्शन पे डिपेंड करेगा किस एमिनो एसिड की कितनी इंपॉर्टेंस और कितने ज़्यादा चाहिए। फाइब्रोइन इज रिच ऑल इन एलेनाइन 30%, सेराइन एंड थ्रियोनाइन predominant in casein and phosphatidyl। कोलाजन हमारी बॉडी में होता है, ग्लाइडिन व्हीट में होता है और जेइन प्रोटीन जो मकाई कॉर्न में होता है उस सब में प्रोलाइन सबसे ज़्यादा होता है। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो हमारे बॉडी के ब्लड में रहेगा 585 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैज़ ओनली 1 ट्रिप्टोफान मोइटिव। 585 में सिर्फ एक ही एमिनो एसिड में वो ट्रिप्टोफान है, तो बहुत कम नंबर्स में भी एमिनो एसिड कुछ में है। पल्स आर नोटेबल लेक ऑफ एस कंटेनिंग एमिनो एसिड एंड मिथियोनाइन बट गुड अमाउंट ऑफ बेसिक लाइसिन, वेयर एज सीरियल्स लेक द लाइसिन बट सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ मिथियोनाइन। आप जब भी खाना बनाते हैं, खाने की कोई भी एक डिश है, दाल के साथ भात है, बाटी है, दाल बाटी, तो बाटी है और उसके साथ दाल है, बराबर। इडली है तो उसके साथ भी उसकी दाल होती है, क्या बोलते हैं आप। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमेशा खाने में, उसमें एक चीज़ सीरियल्स होती है और एक चीज़ पल्सेस होती है। एक कठोर होता है, बराबर, और एक जैसे पल्सिस राइस है, व्हीट है, धान्य पाक बोलते हैं। तो एक दान होता है और एक में कठोर होता है। उसके कारण उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सीरियल्स में लाइसिन नहीं होता पर मिथियोनाइन होता है, और वहाँ पे पल्सिस में दाल, जितनी भी दाल है, मूंग की हो, अदरक की हो, जितनी भी दाल है, उसमें मिथियोनाइन होता है पर लाइसिन नहीं होता। दैट्स वाई इन अवर रेसिपी, जब भी हम कुछ खाना के जो कॉमन स्टैंडर्ड रेसिपी हर रोज़ का जो खाना है, उसमें हमेशा एक सीरियल्स रहेगा और एक
पल्स रहेगा, बराबर। सो दिस इज हाउ वी गेट द एसेंशियल एमिनो एसिड। तो यहाँ पे यूनिट 4 प्रोटीन का 4th लेक्चर ख़त्म करते हैं, और इसके साथ पूरा एमिनो एसिड आपको रिमाइंड करना है। आज एमिनो एसिड ख़त्म, कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़। तो ये सब आपको याद है, ऑल 20 एमिनो एसिड एंड उसका क्लासिफिकेशन। सो GAVLI ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। TTP 3 एरोमेटिक है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइनएलेनाइन। 2 OH कंटेनिंग है, सीराइन एंड थ्रियोनाइन। 2 सल्फर कंटेनिंग है, सिस्टाइन एंड मिथियोनाइन। 2 एसिडिक है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। 2 एमाइड है, एस्पाराजिन एंड ग्लूटामाइन। 3 बेसिक है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। और एक हेटेरोसाइक्लिक है जिसको बोलेंगे प्रोलाइन। ओके, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। वट एवर द सजेशंस यू हैव, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।